and I will appeal to all of these units outside Tripura and outside even India, which are in some are there in Bangladesh as well, to morally and mentally and physically support us in our constitutional fight for Greater Tripura land. This year, the World Indigenous Day theme is Leave No One Behind. And I don't want to leave anyone behind in our movement, be it any political party, be it any social organization, because I also realize that the last fight for our existence will be now. If this time we do not put up a united effort, forever our existence will be over. So I appeal through you all, through the media friends, to please understand that ours is not a political electoral fight. Ours is a movement for our constitutional rights and our rightful constitutional rights which have been denied to us. And whenever it's a student organization or a women's organization, I'm very happy that if they join with us, I'm very happy. I'm also very happy to say that we have not only the TSF president, Vishu here, John here, Vipul here, many other leaders from TSF here. We have the former NESO, current NESO Vice Chairman Upendra Debarma, NESO meaning North Eastern Students Organization. We have Biswajit Paloy, we have Sunil Debarma here. I'm very happy to also say that I have my CM who's somewhere there, and Dolly Riang, Purnachandran Debarma, Dolly Riang. I'm also very happy to see that we have YTF, President Runil Debarma, Working President Pitor Dayung. And we have so many people. This is a good blend of youth, seniors, women and Tiprasas. And our agenda is to sincerely not compromise and work for our final goal. If we succeed, this will not be the victory of TSF, this will not be the victory of Tripura Motha. If we win, this will be the victory for all Tiprasas. This is not the fight for one individual, this is not a fight for one organization, this is a fight for all the Tiprasas. And I know whether you are in CPM or Congress or IPFT or BJP, in your heart, I know that all of you secretly, privately want our Greater Tripura land movement to be successful. Because this Greater Tripura land is not for one organization, it is for all the Tiprasas. I am very happy once again that TSF has joined us. I am also very happy to see Agor Debarma, Narendra Debarma here. Very happy to see NESO Chairman here, Upendra, NESO Vice Chairman Upendra here, and TSF leadership, central leadership. I would also like to request the media once more that Tripura Motha is an independent organization. We are not a B team of any political party. We are the A team for Tiprasas. वो टाइम खत्म हो गया कि रीजनल पार्टी कोई नेशनल पार्टी के लिए बी टीम होता था. हम लोग ए टीम हैं फॉर आवरसेल्व्स, फॉर द Tiprasas. तो दूसरे इश्यूज में हमें अननेसेसरी ड्रैग मत कीजिए, वो उनका प्रॉब्लम है. हमारा लाइन एक अलग है, एक इंडिपेंडेंट लाइन है और हम उस लाइन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. If there is any question from the media, I'll be more than happy to answer. Maharaj, how he will be celebrating the World Indigenous Day this year? Because this is the first time in the history of ADC that the council itself has decided to celebrate officially. आज तक 35 years में
किसी ने भी वर्ल्ड इंडिजिनस डे ऑफिशियली काउंसिल से सेलिब्रेट नहीं किया है। हम लोग फर्स्ट काउंसिल में हम लोग पहली बार वर्ल्ड इंडिजिनस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिजिनस का मतलब भूमिपुत्र, और हम लोग वर्ल्ड इंडिजिनस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुंगिया कामी में अपना प्रोग्राम होगा, खुम्बुलुंग में प्रोग्राम होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम होगा। नॉर्थ कंचनपुर से लेके, गोमती से लेके, ओम्पी से लेके, अमरपुर से लेके, कोरबुक से लेके, अम्बासा से लेके, अगरतला, क्वाई, रामचंद्र घाट, टाकारजला, सब जगह में, सब जहां में हम लोग का एक ब्लॉक्स है, वहां में हम लोग का सेलिब्रेशन होगा। और सेंट्रल हमने इस बार सोचा है कि हम लोग मुंगिया कामी में करें और खुम्बुलुंग में भी प्रोग्राम होगा। अगरतला में अनफॉर्चुनेटली यहाँ में क्योंकि कोरोना का रिस्ट्रिक्शन है और परमिशन नहीं मिल रहा है, हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैं होपफुल हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप लोग हमारे साथ अगरतला में भी प्रोग्राम के लिए शामिल हो सकेंगे। 19 तारीख को महाराजा वीर विक्रम का जन्मदिन है, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और 23 तारीख अगस्त इज ADC डे, वी विल आल्सो सेलिब्रेट दैट, एंड वी विल आल्सो सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। We are the first council to have started Jana Gana Mana in our council. Before that, nobody even thought of doing Jana Gana Mana. Nobody can call us anything. We are patriotic. We love our country. We love the people of our country. And we have a view. क्योंकि हमसे पहले किसी ने नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं कि हम आने वाले दिन में नहीं करेंगे। और God willing एक दिन आएगा कि हम लोग ग्रेटर त्रिपुरालैंड डे भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। Thank you. And another thing, महाराज, तो आप लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है टू फुटबॉल कंपटीशन, आई थिंक, तो वो कब से शुरू हो रहा है? वो 19 तारीख से शुरू हो रहा है। मेरे स्पोर्ट्स EM सुहेल वर्मा उसमें ज़्यादा आपको बता सकेंगे, हमारे CM भी यहाँ में है, प्रमोशन कमेटी, वो बता देंगे। लेकिन ड्रग्स इज अ सीरियस प्रॉब्लम, कोई बात नहीं कर रहा है ड्रग्स के बारे में। हमने ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर को भी अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया है एग्जीक्यूटिव कमेटी में। ड्रग्स सीरियस प्रॉब्लम है, और कोई भी फ्यूचर जनरेशन जिसमें वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स विल नेवर बी एबल टू राइज। सो आई थिंक दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कॉम्बैट ड्रग्स विद स्पोर्ट्स। Yesterday, the whole of India was very proud when Neeraj Chopra won the gold medal. We are also very proud. That's the role model we should do. Role models should be sports people. Role models should be musicians. Role models should be artists. Role models could be journalists. Not only politicians should be role models. I think the biggest problem in Tripura is we only look up at politicians and not other streams. I think the biggest role model, I mean, when Deepa Karmakar won, when Somdev Burman won, when Saurabhi Deparma won the Indian Idol, we all looked up to them. And I'm very happy. I really would like to encourage sports and youth activities amongst our students and the new generation in the ADC. Sir, राजनीति हिंसा एवं कुटनीति हिंसा का आपने किया से देखते हैं। महाराजा वीर विक्रम के राज्य में ये जो पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिक्स शुरू हो गया है, बीजेपी वर्सेस तृणमूल, ये त्रिपुरा एक बैटल ग्राउंड हो गया है फॉर तृणमूल वर्सेस बीजेपी। ये बहुत दुख का बात है। कहीं में भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, और ये वायलेंस जो हो रहा है उससे पूरा त्रिपुरा का छवि खराब होता है। लेकिन जब तिपरा मोथा का वायलेंस हुआ पोस्ट पोल के बाद, तो सबने कहा कि हम लोग एंटी नेशनल्स हैं, क्योंकि जब तिपरासा फाइट करता तो हम लोग एंटी नेशनल्स हैं, उग्रपंथी हैं। जब टू नेशनल पार्टीज या एक रीजनल और एक नेशनल पार्टी फाइट करते हैं तो कोई बोलता है कि राजनीतिक हिंसा, इसको भी आप एंटी नेशनल बोलिए। हम करेंगे तो एंटी नेशनल, वो करेंगे तो पॉलिटिकल हिंसा नहीं होगा। और कहीं में भी पॉलिटिकल हिंसा, कहीं में भी किसी को मारना, किसी को रोकना, वायलेंस से त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सबसे पीछे है इंडिया में, स्टेट्स में, क्योंकि हमने हमेशा राजनीति को सामने रखा है और कम्युनिटी को पीछे रखा है।
हमेशा हमने नेता का बारे सोचा है और सोल्यूशन नहीं निकाला है। एंड दिस वायलेंस इज कंडेमेबल। महाराजा वीर विक्रम ने कभी नहीं सोचा था, मेरे माँ बाप ने कभी नहीं सोचा था कि त्रिपुरा आज इस स्थिति में रहेगा कि हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस होगा। और इस वायलेंस से पूरा इंडिया में हमारा स्टेट का छवि खराब हो रहा है, और इस छवि को खराब करने के पीछे कौन है हम लोग सब जानते हैं। Another question, your council has taken a decision to honor the Samaj Justice. So, and our state government is also giving an allowance or monthly allowance to the Samaj. So, are there the same people who are you going to, or there are different? तो beneficiary selection क्या एक ही होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे ऑकराज हैं, जो खदा है, जो चांगताए हैं, कास्को है, वो लोग बेनिफिशियरी नहीं है। उनका अधिकार बनता है कि हम लोग उनको सम्मान दें। स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था आज से 2 साल पहले, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। हमने बाय सर्कुलेशन अपना ऑर्डर पास कर दिया है। हम लोग अगले महीने से ये डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली करेंगे, और क्योंकि अगर अपना तिपरासा आइडेंटिटी और कल्चर को प्रिजर्व करना है तो पॉलिटिकल मायने से नहीं दिखना पड़ेगा। जो कम्युनिटी चूज करेगा, कौन उनका होदा है, उनका ओकरा है, उनका आदौन है, उन्हीं को हम देंगे। हम अपनी तरफ से किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट करके किसी को बेनिफिट देने लगे, उस दिन राजनीति शुरू हो जाता है। मैं चाहता हूं कि हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कल्चरल एक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक सम्मान दिया जाए और एक स्टाइपेंड दिया जाए। मेरे संग मेरे सीएम यहाँ में बैठे हैं, वहाँ में ईएम्स बैठे हैं। हमने डिसीजन लिया है कि एवरी कम्युनिटी एल्डर who has an elder in the traditional setup will be given a monthly stipend starting from 1st of September। और ये हमने खुद किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक डिसीजन लिया है लेकिन किया नहीं है। हमने डिसीजन भी ले लिया है, अमाउंट भी फिक्स कर दिया है, और अब हम प्रोसेस भी शुरू कर रहे हैं, और हमने टारगेट भी रख दिया है कि सितंबर से ये काम शुरू हो जाए। उनके लिए मैंने अपने तरफ से, क्योंकि 14 देवता में जो होता है वो रॉयल फैमिली की तरफ से भी होता है, मैंने उनको अपने तरफ से मैंने एक प्लान बनाया है। राजमाता भी त्रिपुरा में है, आने वाले दिन में उनके लिए भी मैं कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखिए, त्रिपुरा को सब लोग बोलते हैं कि बैकवर्ड। तिपरासा इज नॉट बैकवर्ड। तिपरासा वाज अ किंगडम। तिपरासा हैज अ हिस्ट्री। तिपरासा इज अ सिविलाइजेशन। तो अगर हम लोग अपने तिपरासा लोगों को इज्जत सम्मान, हमारे इंस्टीट्यूशंस को सम्मान नहीं करेंगे, जो ट्रेडिशनल सेटअप है, तो बाहर के लोग कैसे सम्मान करेंगे? इसके लिए ये जो कल्चर खत्म किया गया, कम्युनिस्ट ने खत्म किया, ये क्लब को रिप्लेस करके आज जो हमारा सिस्टम इतना डिप्रिशिएट हुआ है क्योंकि एक पूरा मूवमेंट था कि हमारे पूरे ट्रेडिशनल सेटअप को खत्म किया जाए। आज इंडिया का जो सम्मान आता है वो सिर्फ आईटी से नहीं आता है, हमारे इतिहास से भी आता है। आज जो पूरा, अगर आप बंगाली कल्चर के बारे में बोलेंगे तो सिर्फ आज क्या हो रहा है उससे नहीं आता है, उनके इतिहास से आता है, उनके किताब से आता है, उनकी हिस्ट्री से आता है। अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो उनकी हिस्ट्री से आता है। आप जब इंग्लैंड जाएंगे तो उनका हिस्ट्री से आता है। आप अगर चाइना को देखेंगे तो उनकी हिस्ट्री से आता है, माओ से नहीं आता है। तो हमारा भी इतिहास है, हमारा भी एक कल्चर है, whether it is Galit, whether it is Kaskau, whether it is Kshatriya Samaj, whether it is Hoda, whether it is Chantai, whether it is Chaudhary, whether it is anybody, we have to start respecting our traditional system, and that is something I am following up. और लास्ट बात है रिगार्डिंग पॉलिटिकल वायलेंस।
ये जो पॉलिटिकल वायलेंस स्टेट में हो रहा है, मैं अपील करता हूं स्टेट गवर्नमेंट को टू काइंडली लुक इनटू इट एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ वायलेंस। पहले से इकोनॉमी खराब है, पहले से कोविड से सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम में है, और इस तरीके से वायलेंस होने से त्रिपुरा में कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, कोई बिजनेस भी नहीं